ہلو بچوں، آواز آ رہی ہے؟ ہلو، آواز آ رہی ہے بچوں؟ جی میم، السلام علیکم. آ رہی ہے آواز؟ وعلیکم السلام. آ رہی ہے نا آواز میری؟ جی جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سبھی بچوں کو آ رہی ہے نا آواز؟ جی میم آ رہی ہیں. ٹھیک، میں اسٹارٹ کروں. وعلیکم السلام. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کل میں پرائمری پریونشن کے بارے میں بتائی تھی، کانسیپٹ آف پریونشن، جس میں پرائمری پریونشن کے بارے میں بتا چکی تھی. اسپیسیفک پروٹیکشن کے بارے میں بتا ہی رہی تھی کہ ہو گیا. میں اب اسپیسیفک پروٹیکشن کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں. اسپیسیفک پروٹیکشن has benefit to a great extent by improved modern day medical technology. Specific protection has benefited to a great extent by improved modern by medical technology. Technological breakthrough have provided adequate and the appropriate tools of prevention. However, specific protection dates back to 1753. 1753, when James Lind advocated the use citrus fruit to semen in order to prevent the scurvy, gave a further boost to strategies for specific protection. Mass chemoprophylaxis is also a modern tool of specific protection. Other examples of specific protection are as follows. جو نیچے دیے گئے ہیں. Other examples of specific protection are as follows. Active immunization by vaccine against measles. کس کے خلاف؟ against measles, polio, diphtheria, pertussis, tetanus, hepatitis B, etc. یہ ہے ایکٹیو امیونائزیشن. Active immunization by vaccine against measles, polio, diphtheria, pertussis, tetanus, hepatitis B, etc. B. Passive immunization by gamma globulins for tetanus, rabies, viral hepatitis, etc. وہ ایکٹیو میں تھا، یہ پیسو میں پیسو امیونائزیشن بائی گاما گلوبولینز فار ٹیٹنس، ریبیز، وائرل ہیپیٹائٹس ایٹیسی. سی میں نیوٹریشنل سپلیمنٹیشن، سی میں آتا ہے نیوٹریشنل سپلیمنٹیشن ان مڈ ڈے اسکول میل. Nutritional supplementation in midday
स्कूल मील प्रोग्राम ICDS। ICDS का फुल फॉर्म I से इंटीग्रेटेड, C से चाइल्ड, D से डेवलपमेंट और S से सर्विसेज। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज program ETC to prevent against PEM, to prevent against PEM। PEM भी होता है, PM का भी फुल फॉर्म है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन सप्लीमेंशन इन मिड डे स्कूल मील प्रोग्राम ICDS program ETC to prevent against PEM। D में आइए, ABC, D में आइए, specific nutrient supplementation by vitamins A। Specific nutrient supplementation by vitamin A, iron and iodine, iron and iodine। E में chemoprophylaxis with chloroquine to prevent against malaria in travelers to endemic areas। Prevent against malaria in travelers in endemic areas। F, use of protective goggles in industry, use of protective goggles in industry। G में chlorinations of water supplies etc। Specific protection, खुसूसी तहफ़्फ़ुज़। जदीद दौर में मेडिकल टेक्नोलॉजी की तरक्की ने खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ को बहुत हद तक फायदा पहुंचाया है, बहुत हद तक। जदीद दौर क्या हुआ? मॉडर्न मेडिकल, तो मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी की तरक्की ने खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ को बहुत हद तक फायदा पहुंचाया है। खुसूसी तहफ़्फ़ुज़, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो जदीद दौर में मॉडर्न जमाने में टेक्नोलॉजी की तरक्की खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ को बहुत हद तक फायदा पहुंचाया है। टेक्निकी कामयाबियों ने, जो टेक्निकल हुआ है, टेक्निकी कामयाबियों ने हस्बी जरूरत और मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ के जरिए, हस्बी जरूरत और मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ के जरिए, जो जरूरत के लायक, जो जरूरत हो और जो हस्बी जरूरत है और जो मुनासिब भी हो तहफ़्फ़ुज़ के लिए, प्रिवेंटिव के लिए किस ज़राए फराहम किए, इन्हें ज़राए रास्ते फराहम किए। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन यानी खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ 1753 से जाना जाता है, 1753 से जाना जाता है, जब जेम्स लिंड ने समुद्र में काम करने वालों को, जब जेम्स लिंड ने समुद्र में काम करने वालों को अस्करवी से बचाने के लिए, अस्करवी बीमारी तो आप लोग जानते ही होंगे, अस्करवी कौन सी बीमारी है? यानी विटामिन सी की कमी से जो अस्करवी होता है वो क्या सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ता है? मसूड़े पर पड़ता है, जिससे मसूड़े पे स्वेलिंग हो जाती है और क्या होता है? दांत झड़ने लगते हैं, अस्करवी बीमारी।
स्कर्वी से बचने के लिए खट्टे फल, क्योंकि खट्टे फल किसमें होते हैं? विटामिन सी। तो स्कर्वी से बचने के लिए खट्टे फल यानी साइट्रस फ्रूट्स इस्तेमाल करने की वकालत की थी। इस्तेमाल करने की वकालत की। कौन, किसने किया था? शुरू में 1753 से जाना जाता था स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के बारे में। तो जेम्स लेंस ने समुद्र में काम करने वालों को स्कर्वी से बचाने के लिए खट्टे फल साइट्रस फ्रूट इस्तेमाल करने की वकालत की थी। 1796 में जीनर ने चेचक की वैक्सीन की खोज करके चेचक की वैक्सीन की खोज करके उस हिकमत अमली को मजीद तकवीत दी। उस हिकमत को मजीद तकवीत दी। और उससे क्या हुआ? तकवीत मिली लोगों को, बहुत ज्यादा तकवीत मिली, मजीद तकवीत मिली। बड़े पैमाने पर हिफ्ज मा तकद्दुम, बड़े पैमाने पर हिफ्ज मा तकद्दुम, हिफ्ज मा तकद्दुम बीमारी मर्ज पैदा होने से पहले जो तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। मर्ज हिफ्ज मा तकद्दुम, बीमारी पैदा होने से पहले जो हिफाजत की जाए वो हिफ्ज मा तकद्दुम है। तो चेचक की जब वैक्सीन की खोज की, उसकी हिकमत ने मजीद तकवीत दिया। बड़े पैमाने पर हिफ्ज मा तकद्दुम के तौर पर किसी मर्ज से बचने के लिए दवा देना भी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का जदीद हथियार है। खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े पैमाने से मर्ज के बचाने के लिए भी ये क्या होता है? खुसूसी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। तो ये बड़े पैमाने पर हिफ्ज मा तकद्दुम के तौर पर किसी मर्ज से बचने के लिए दवा देना भी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का जदीद हथियार है। मखसूस तहफ़्फ़ुज़ की दूसरी मिसालें दर्ज झैल है जो नीचे मैं बता रही हूँ। तो इससे हुआ कि अब चेचक का जब वैक्सीनेशन खोजा गया तो उसमें भी जो उसको मजीद मर्ज फैलने नहीं पाए, खसरा मिज़िल्स ये सब जो है फैलने नहीं पाए, वैक्सीनेशन पहले लगा दिया आदमी, तो उससे क्या है कि मर्ज हिफाजत में आ जाता है। तो उसमें बहुत ज्यादा तकवीत मिली। अच्छा, एक्टिव इम्यूनाइजेशन नंबर 1। एक्टिव इम्यूनाइजेशन खसरा जो मिज़िल्स हुआ, चेचक, पोलियो, काली खांसी, खुनाक, टेटनस, हेपेटाइटिस बी वगैरह के खिलाफ वैक्सीन का इस्तेमाल करके, अब ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन में आ गया, यानी खसरा, चेचक, पोलियो, काली खांसी, खुनाक, टेटनस, हेपेटाइटिस वगैरह के खिलाफ वैक्सीन का इस्तेमाल करके बचाओ। ठीक है, तो ये जो है मर्ज जो जैसे चेचक, पोलियो, काली खांसी होने से पहले मैं उसका होता है उसका इम्यूनाइजेशन कर लेना, वैक्सीनेशन दे देना, उससे ये भी बचाव में आ गया। तो अब ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन हुआ और इसमें जो ये भी हो गया आपके स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ये खसूसी तहफ़्फ़ुज़ में आ गया। खसूसी तहफ़्फ़ुज़ हो गया भाई, इतना इम्यूनाइजेशन पड़ गया सब पर, ये खसूसी तहफ़्फ़ुज़ हो गया। तो खसरा, चेचक, पोलियो, काली खांसी, खुनाक, टेटनस, हेपेटाइटिस बी वगैरह के खिलाफ वैक्सीन का इस्तेमाल करके अब इन लोगों के पहले जो है वैक्सीनेशन लगा दिया तो खसूसी तहफ़्फ़ुज़ में आ गया। ठीक, दूसरा है पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन पैसिव इम्यूनाइजेशन वायरल हेपेटाइटिस
वायरल हेपेटाइटिस टेटनस, कुत्ते के काटने के लिए गामा ग्लोब्यूलिन के जरिए। ये क्या हुआ? ये पैसिव इम्यूनाइजेशन में है। तीसरा है न्यूट्रिशनल supplementations in midday meal program. मिड डे मील प्रोग्राम में ग़िज़ायत की सप्लाई, मिड डे मील में प्रोग्राम में ग़िज़ायत की सप्लाई, ICDS वगैरह न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन एंड मिड डे मील प्रोग्राम। ICDS के माने पहले भी मैं बता चुकी हूँ, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस का ये सब प्रोग्राम करना, यानी बच्चों की ग़िज़ात में खाना जो मिड डे मील होता है उसमें किस तरह का ग़िज़ा होना चाहिए, उसकी भी जो है ख़ुसूसी तहफ़्फ़ुज़ में आता है। तो मिड डे मील के वगैरह ये ICDS का प्रोग्राम करना, ICDS का प्रोग्राम। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से महफूज रहने के लिए नंबर 4 विटामिन ए, आयरन, आयोडीन की मखसूस ग़िज़ाई सप्लाई। विटामिन ए, आयरन और आयोडीन की मखसूस ग़िज़ा सप्लाई, ये भी आपके स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आता है। अब जहां जिस इलाके में विटामिन ए की कमी है तो वहां दवा पिलाई जाती है, आयरन की कमी है वहां गोलियां दी जाती है, आयोडीन की कमी है वहां दवाएं भेजी जाती है। उसकी ग़िज़ा और ग़िज़ा जो अच्छी ग़िज़ा है उसकी सप्लाई के लिए, आयोडीन की कमी के सप्लाई के लिए। तो चौथा है विटामिन ए, आयरन, आयोडीन की मखसूस ग़िज़ा सप्लाई। पांचवा है मलेरिया से मुतासरा इलाका, मलेरिया से मुतासरा इलाकों में सफर करने वाले, मलेरिया से मुतासरा इलाकों में सफर करने वालों में हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर जो मलेरिया के मुतासरा इलाका जहां जाने से मलेरिया सबको हो रहा है उस जगह पर हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के लिए, यानी बीमारी पैदा होने से पहले उसके लिए हिफाजत में क्लोरोक्विन देना ताकि मलेरिया से बचा जा सके। उससे क्या है, क्लोरोक्विन देना ताकि मलेरिया से बचा जा सके। मलेरिया से जो कहा, मलेरिया से मुतासरा इलाका जहां मलेरिया फैला हुआ हो उस जगहों पर जो है सफर करने वालों को, उस जगह पर सफर करने वालों को हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर क्लोरोक्विन देना ताकि मलेरिया से बचाव हो। सेकेंडरी प्रिवेंशन process has been initiated the human host. The aim of such an approach is to minimize the spread of a disease and to reduce the serious consequences. The aim of such approach to minimize the spread of a disease and to reduce
the serious consequences. This is achieved through early diagnosis and treatment. Early diagnosis at various levels. A, in the general population, or in an age specific population, or in an specific population. B, captive groups such as school children, jail inmates, and industrial workers. C, in a hospital or clinical setting. In a hospital and clinical setting. Early diagnosis from the treatment offers the benefits to the affected individuals as well as to the secondary prevention. इंसानी मेजबान में सेकेंडरी प्रिवेंशन इंसानी मेजबान में बीमारी का अमल शुरू होने के बाद सानवी तहफ़्फ़ुज़ का काम शुरू होता है। इसका मकसद बीमारी के फैलाव को रोकना और संगीन नतायज को कम करना। इंसानी मेजबान में बीमारी का अमल शुरू होने के बाद, बीमारी का जब अमल शुरू हो जाता है, शुरू होने के बाद सानवी तहफ़्फ़ुज़ का काम शुरू होता है और उसका मकसद बीमारी के फैलाव को रोकना। इसका मकसद होता है बीमारी जो फैल गया है उसको रोकना और संगीन नतायज को कम करना। जिसको जल्द अज जल्द, जितना जल्द हो सके, जिसको जल्द अज जल्द तशखीस और इलाज के जरिए, यानी तशखीस करके इलाज के जरिए हासिल किया जा सकता है। ये आपके सेकेंडरी में आता है, ये सेकेंडरी प्रिवेंशन है। सानवी तहफ़्फ़ुज़ यानी इस इंसानी मेजबान में बीमारी का अमल शुरू होने के बाद, जब ये अमल पहले भी जो बताया, अमल शुरू होने से पहले और अब जो बताया जा रहा है सेकेंडरी में, तो अमल जिसमें बीमारी का अमल शुरू होने के बाद
बीमारी का अमल शुरू होने के बाद सालमी तहफ़्फ़ुज़ आप सब जो सेकेंडरी प्रिवेंशन का काम शुरू होता है, इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद बीमारी के फैलाव को रोकना। जो बीमारी फैल गई है तो उसको रोकना और संगीन नताइज को कम करना। जो संगीन नताइज हो गए उसको कम करना, जल्द अज जल्द, जितना जल्द हो सके संगीन नताइज को कम करना। जिसको जल्द अज जल्द तशखीस करके, यानी आप पहचानिएगा, जांचिएगा, तभी पता चलेंगे कौन किससे फैला कैसे। तो जिसको जल्द अज जल्द तशखीस करके और इलाज के जरिए, तशखीस करके और इलाज के जरिए हासिल किया जा सकता है। फौरी तशखीस और फौरी तौर पे इलाज, फौरी तशखीस और फौरी तौर पे इलाज मुख्तलिफ सतहों पर शुरू किया जाता है, मुख्तलिफ सतहों पर शुरू किया जा सकता है। समझ बात आई? सेकेंडरी में ये जो है मर्स फैलने पर बताया मैंने, और वो मर्स फैलने से बचाव के लिए पहले बताया। और अब जो है ये इसमें है कि मर्स फैल जाएगा तो आप कैसे कीजिएगा जल्दी जल्दी। तो मर्स के पहले जल्दी जल्दी हम लोग इसको तशखीस करेंगे, इलाज करेंगे, और इलाज के जरिए उसको जो है मर्ज जो फैल रहा है उसको रोकने की कोशिश की जाए। तशखीस और फौरी तौर पे इलाज मुख्तलिफ सतहों पर शुरू किया जा सकता है। जिस जगह पर से शुरू है उस मुख्तलिफ जगह पर से शुरू किया जाए। नंबर 1, पूरी आबादी या आबादी के किसी खास की उम्र के लोगों में। जब मर्ज पूरी आबादी फैला तो पूरी आबादी या किसी खास उम्र के लोगों में, आबादी के किसी खास उम्र के लोगों में, ठीक है। नंबर 2, ग्रुप में रहने वालों में, ग्रुप में रहने वाले जो एक झुंड बना के ग्रुप बना के रह रहे हैं, उसमें ग्रुप में रहने वालों, मसलन स्कूली बच्चों, स्कूल के बच्चे एक झुंड बना के रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, स्कूली बच्चे। जेल में रहने वाले, जो जेल में रहने वाले, जो जेल में रह रहे हैं, और इंडस्ट्रियों में काम करने वाले लोग जो कल कारखानों में काम करते हैं, वो भी झुंडी बना के रहते हैं, ग्रुप बना के। जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग, तीसरा अस्पताल या क्लिनिक में, जब मरीज अस्पताल और क्लिनिक में भी जमा होते हैं। तो ये जो आप जो सेकेंडरी वाले जो है प्रिवेंशन है, तहफ़्फ़ुज़ पूरी आबादी में है, जहाँ पहला आबादी में है, या आबादी के किसी खास उम्र के लोगों में है, या ग्रुप में झुंड बना कर रह रहे हैं, स्कूली बच्चे, जेल में रहने वाले, कल कारखानों में काम करने वाले लोगों, और अस्पताल या क्लिनिक में। तो इनको जो है सेकेंडरी प्रिवेंशन की किया जाए, ठीक है। Early diagnosis and the prompt treatment offers benefits to the affected individuals as well as to their families and the community. It helps to reduce the transmission of infection and hence is considered as the method of prevention. Yani early diagnosis and prompt treatment offers benefits to the affected individuals as well as to their families and the community. It helps to reduce the transmissions of infection and hence considered as the method of prevention. As the preventive strategy, it is the most useful for disease with longer incubation period or long latent
period since the sufficient time is available to prevent the further the progression of a disease and to improve the further the progressions of a disease and to improve the prognosis. इब्तदाई तशख़ीस और फौरी इलाज मुतासरा अफराद के अलावा इब्तदाई तशख़ीस और फौरी इलाज मुतासरा अफराद के अलावा उनके खानदान और समाज को भी पैदा पहुंचाता है। समझ में बात आई? इब्तदाई जो शुरू की जो तशख़ीस होती है, फौरी जांच होती है, उसके मुतासरा अफराद को जो उससे ज्यादा जो मुतासरा होते हैं अफराद होते हैं, उनके अलावा उनके खानदान और समाज को भी पैदा पहुंचाता है। ये इन्फेक्शन को फैलने से रोकता है, इन्फेक्शन को फैलने से रोकता है। और इस तरह ये तहफ़्फ़ुज़ का तरीका समझा जाता है। इस तरह ये तहफ़्फ़ुज़ का तरीका समझा जाता है। यानी इब्तदाई तशख़ीस जो शुरू में जांच की गई और फौरी इलाज, जैसे मर्ज अटैक किया उस वक्त इब्तदाई शुरू में तशख़ीस की गई और फौरी इलाज करना मुतासरा अफराद को जो मुतासिर हुए हैं, जो इस मर्ज में इन्वॉल्व हुए हैं, मुतासरा अफराद जो मुतासिर हुए, जो अफराद के अलावा उनके खानदान और समाज को भी पैदा पहुंचाता है, उनके खानदान और समाज को भी पैदा पहुंचाता है। ये इन्फेक्शन को फैलने से रोकता है, ये इन्फेक्शन को फैलने से रोकता है और इस तरह ये तहफ़्फ़ुज़ का तरीका समझा जाता है और इस तरह ये तहफ़्फ़ुज़ का तरीका समझा जाता है। समझ बात आ गई? ये सेकेंडरी प्रिवेंशन है और इसके बारे में कैसे जो यहाँ जो है मर्ज पहले मैंने बताया मर्ज फैलने से पहले बचाओ। अब मर्ज जब फैल जाता है उसकी कैसे आप बचाव कीजिएगा, मर्ज को जल्द तशख़ीस कीजिएगा, उसका इलाज कीजिएगा और उसके बाद जो है फौरी तशख़ीस करने के बाद फौरी तौर से इलाज करने पर सतहों पर शुरू किया जाता है तो काम उसका जो है मर्ज फैलने से रोका जा सकता है। तो इब्तदाई जैसे शुरुआत होता है, इब्तदाई तशख़ीस और फौरी इलाज से मुतासरा अफराद के अलावा उनके खानदान और जो मुतासिर हो जाते हैं तो उसके अलावा जो उनके खानदान में भी हो जाता है, उस खानदान और समाज को भी पैदा पहुंचाता है। ये इन्फेक्शन को फैलने से रोकता है और इस तरह ये तहफ़्फ़ुज़ का तरीका समझा जाता है।